Good morning, students. Myself Swaranjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School, class 12 in mathematics. Students, you already know that we have started the chapter derivative. In this chapter, we have find out the derivative of the algebraic expression. Then we have to find out the derivative of exponential, logarithmic, then trigonometric function. Today we will discuss about how to find out the derivative of the inverse trigonometric function. You have the sine inverse x. When you have written only the sine x, it means you have to find out the derivative of sine x. ठीक है, that means this is the trigonometric function. But when you have written that sine inverse x, it means it is the inverse trigonometric function. Its derivative is simply 1 upon square root 1 minus x square, where your x belongs to minus 1 to 1. Students, when you go for the JEE exams, IIT exams, you have given, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं. इफ द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 upon 1 minus x square, then what will be the range of the x? So that means your x belongs to minus 1 to 1 open interval. ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखो, देख के आपको बड़ी छोटी बात लग रही है कि x का क्या मीनिंग है. ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट होएगा. बट जब आप इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हो ना, तो तब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है. सो आपने याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर योर एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1. सेम एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ योर कॉस इनवर्स एक्स. Slightly difference is here is only minus 1. Minus 1 upon square root of 1 minus x square, where your x belongs to minus 1 to 1. Then derivative of the tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Derivative of the cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. Then derivative of the secant inverse x, 1 upon modulus of x and square root 1 minus x. And same as it is, derivative of the cosecant inverse x is 1 upon modulus of x square root of x square minus of 1. मीन्स बच्चे, अगर आप स्टार्टिंग में इनको याद करते हो ना, मीन्स आपने सीखना है, प्रैक्टिस के साथ आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं. बट आप देखो, साइन और कॉस इज सेम, बट द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द नेगेटिव साइन. tan and cot is also same, but the difference is of only negative sign. Same as it is cosecant inverse x and cosecant inverse x is same. The difference is only of the negative sign. So let's start its questions. ये फॉर्मूलाज के पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रही हूँ साथ, वो आप ध्यान से देख लेना और अपनी फेवरेट बुक पे कर लेना. ठीक है, जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, तब आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएंगे. इसके बाद बच्चे, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज है आपके, जैसे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, उन सभी का मैं आपको साथ ही एक पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ. बट ये सारे आपने ऑलरेडी +1 क्लास में किए हुए हैं, उनको एक बार जरूर देख लेना. क्वेश्चन इज गिवन टू यू, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, इट्स फिफ्थ. सेकेंड पार्ट करवा देती हूँ, फर्स्ट इज वेरी इजी. साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. बच्चे, अगर आपको याद होएगा, इसमें हम ना पुट करके करेंगे, आपको अगर याद होएगा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है. साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द साइन 3 थीटा. अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे if I will put the x is equals to sine theta, then this equation will becomes the sine 3 theta. So take, put x is equals to sine of theta. So your statement will becomes, take it y is equals to, किसी न किसी वेरिएबल के इक्वली लेना पड़ेगा, तभी उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर पाएंगे. So this will becomes sine inverse 3 of sine theta minus 4 of sine of cube theta. Now what it becomes? It is sine of 3 theta.
अब देखो बच्चे साइन इनवर्स एंड साइन इज कैंसिल हो रहा है ना ये दोनों आपस में, देन कैंसल्ड इट, सो योर y इज ओनली इज इक्वल्स टू 3 थीटा। बट बच्चे हमने तो डेरिवेटिव किसका विद रिस्पेक्ट टू करना, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन को इस साइड ले जाएंगे, सो योर थीटा इज साइन इनवर्स x। जिस चीज को आप पुट कर रहे हो ना एंड में, वहां से आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ले लेनी है। सो नाउ योर y इज 3 साइन इनवर्स x। सो अब बच्चे सिंपली साइन इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, dy ओवर dx, 3 एज इट इज लिख लो, साइन इनवर्स डेरिवेटिव इज 1 माइनस एक्स के। अब देखो ये सारा प्रोसेस मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप यहीं से सीधा इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तब आपके पास क्या आ जाना था, ये सारी टर्म्स को आपको x कैपिटल X लेट करके 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इसका होल स्क्वायर करना पड़ना था, ठीक है। सो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, सो दैट्स व्हाई इस एक्सरसाइज में हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पुट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाए। ओके, सो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। बच्चे आपको डेली जो वीडियो सेंड की जा रही है ना वो आपके लिए देखनी कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप इनको वीडियोस को देखोगे ना तो ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। शुरू से लेके एंड तक वीडियोस को देखना कंपलसरी है। लिखो स्टेटमेंट, tan इनवर्स, इस तरीके के बहुत सारे सम है आपके, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। किसी में साइन ऊपर दिया है, किसी में 1 प्लस साइन दिया है, किसी में कॉस थीटा दिया है, ठीक है, इस तरीके के हैं। अब देखो रजी, यहाँ पे क्या है, tan मीन्स वी हैव टू फॉर्म हियर tan के फॉर्मूले में हमने इसको कन्वर्ट करना है। सो क्या पुट करें, अब देखो रजी, साइन x का क्या फॉर्मूला होता है साइन x इज 2 sin x over 2 cos x over 2, and what is your 1 plus cos x is 2 sin cos square x over 2, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता देन इट विल बिकम्स द साइन, सो दिस विल बी, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 plus cos x is 2 cos square x over 2 and 2 sin x over 2 and cos x over 2. So your 2 is cancelled and 1 power of cos is cancelled. You have tan inverse cos x over 2 and sin x over 2. अब बच्चे देखो cos x over sin x आपका क्या बन जाएगा, cot x over 2। अब tan तो cot के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, बट हम जानते हैं कि अगर हमने cot को इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करना है तो पाई ओवर 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो tan पाई ओवर 2 माइनस ऑफ x over 2. नाउ tan is cancelled with tan inverse, so you have only pi over 2 minus x over 2. Now what will be your value of the x? Derivative is dy over dx is pi over 2 is the constant number, so your derivative will be 0 and x derivative is 1, so your answer is minus of 1 over 2. इस तरीके के आपके सम्स हैं। मैं आपको अभी ज़्यादा सम नहीं दे रही हूँ, बाकी जो जितने इसके नेक्स्ट सम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। फिलहाल कल के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पार्ट तक आपने करने हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।